Good morning, students. My name is Ritu Singh. I am faculty for the subject of microeconomics. It is the subject for BCom first year, first semester. So today we will start with the first lecture of microeconomics. What is microeconomics? Microeconomics is the study of, or we can say it's the application of economic theories and economic policies on individual basis. So let's start with the microeconomics first chapter. So the subject is microeconomics and today's topic is introduction. This belongs to unit 1. So let's see for the introduction. Before coming to microeconomics, we are supposed to talk about economics, from where it is generated. Economics is a vast field of social science. It's a broad field of social science which is concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. Economics studies the factors of production. It studies the factors of distribution and studies the factors of cost. And studies and tries to take out solution about how to optimize the production and how to increase the profit of any organization, any running organization. So we can, by that we can understand that इकोनॉमिक्स आपकी वो फील्ड ऑफ स्टडी है जो ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन की जाए. अगर हम इकोनॉमिक्स को एक लाइन में सबमिट करना चाहें या एक लाइन की उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम उसमें ये लिख सकते हैं that economics is a social science which is concerned by the use of minimum resources in order to get maximum output. Or you can say that how to generate maximum output with minimum input is concerned with economics. Then economics is generally classified into two branches, macroeconomics and microeconomics. Okay. So in macroeconomics, the subject is concerned with the aggregate behavior of the total economy. And microeconomics focuses on individual businesses or individual consumers. So economics दो parts में divided है, macro and micro. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स उसकी एग्रीगेट बिहेवियर को पढ़ता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक कंट्री के एग्रीगेट बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, उसकी स्टडी है. जब आप नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. और दूसरा पोर्शन इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि डील करता है इकोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल बिजनेसेस. तो जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. So we can say that microeconomics is a science, is a part of economics which deals with household, individual household, and macroeconomics deals with whole economy. Then come to the chapter of microeconomics. Since this is the subject of microeconomics, we will be focusing on all the activities or on the operations which are concerned on individual level, or we can say on single business level or single industry level. So what is the definition of microeconomics here? Microeconomics is the study of individuals, households, and firms' behavior in decision making and allocation of resources. It generally applies to market of goods and services and deals with individual and economic issues. So what is written here? Microeconomics, individuals या households या एक firm के behavior
की स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जानने की कोशिश की जाती है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से कर सकें और उनको हेल्प कर सके बेटर डिसीजन मेकिंग में, so that they can make decisions which are fruitful or profitable for the organization and generates enough income. So microeconomics is applied with goods and services in the market, their demand and supply, and their individual and economic issues. Another definition of microeconomics is that it is the study of decisions made by people and business regarding the collection of resources and prices of goods and services. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे या एक फर्म लेवल पे किस तरीके से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, किस तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन की जाएगी और जो फाइनल गुड या सर्विसेज बन रही है उसका प्राइसिंग किस तरीके से किया जाएगा, हाउ मच pricing needs to be done in order to secure some profit. So for example, microeconomics examines how a company could maximize its production and capacity so that it can lower prices and can compete in the industry. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिया। ये डिसाइड करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कैसे कर सकती है, अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकती है, और जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव लो हो जाता है, इफेक्टिव कॉस्ट इज लोअर्ड, एंड दिस बाय दिस हेल्प वी कैन लोअर द प्राइसेस ऑफ द फाइनल गुड। और जब प्राइसेस आपके लो हो जाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब वो सेल ज़्यादा होने लगेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से। There is a one firm, there is one FMCG firm which is producing FMCG goods. It is producing 100 cartons of soap every day. And it has a demand of 120 cartons of soap every day in the market. So now what should be done in the production process that the firm owner can increase the production of soaps to match the demand of market? That will increase its income and profit both. तो एक कंपनी है जो रोज 100 कार्टन्स ऑफ सोप बनाती है और मार्केट की डिमांड 120 कार्टन्स की पर डे की है। अब जो फर्म ओनर है वो क्या करे, किस तरीके से अपने फर्म के प्रोडक्शन फैक्टर्स को, कॉस्ट फैक्टर्स को कैसे मैनेज करे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, सो दैट मार्केट में जो 120 सोप्स की डिमांड है, 120 कार्टन ऑफ सोप्स की डिमांड है, वो उसको पूरा कर सके। जब वो ज्यादा सामान बना पाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, एफिशिएंट प्रोडक्शन कर पाएगा, मार्केट की डिमांड को पूरा करेगा, तो उसकी सेल इंक्रीज होगी, और सेल जब इंक्रीज होगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। Now let's take a look at microeconomics versus macroeconomics. Since on the first slide we studied that economics is divided into two parts. Microeconomics talks on the individual level and macroeconomics talks on the country level. Okay, so let's look at some differences of micro and macroeconomics. ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अक्सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू यू to study these differences and elaborate them if the question comes in exam. You will get good marks. The first point here of the differentiation is that microeconomics studies individuals and business decisions, while macroeconomics analyzes the decisions made by country and governments. So, first difference is stating that microeconomics is concerned with individual decisions. एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी डिमांड्स को, अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है। या एक बिजनेस किस तरीके से अपने डिमांड एंड सप्लाई डिसीजंस ले रही है, किस तरीके से अपने इन्वेंट्री डिसीजंस ले रही है, किस तरीके से अपनी प्रॉफिट प्लानिंग कर रही है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स
एनालाइज करता है डिसीजंस मेड बाय द कंट्रीज एंड देयर गवर्नमेंट्स। तो जब आपकी कंट्री में हर साल बजट आता है जो ये डिसाइड करता है कि कंट्री के अंदर किस स्कीम में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, हम कितना लोगों की वेलफेयर में स्पेंड करेंगे, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। जब किसी हर साल बजट में ये डिसाइड होता है कि हमको इतना अमाउंट, इतना कैपिटल इस सेक्टर में इन्फ्यूज करना है सो दैट उस सेक्टर की, उस टोटल सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ सके, उसकी वजह से सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ सके, उसके डिमांड, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सके। तो दीज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज microeconomic focuses on, sorry, next point states that microeconomics focuses on supply and demand and other forces that determines price levels, making it a bottom-up approach. So second point states about what is the approach of microeconomics. Microeconomics is concerned about supply and demand. मार्केट में कितना डिमांड है किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी के लिए और उसकी सप्लाई प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितनी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड होता है। और इनसे रिलेटेड दूसरी फोर्सेस कि प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होगा, what should be the price of raw material, what should be the price of work in progress, and what should be the price of final good. फाइनल गुड का प्राइस कितना रखा जाए कि कंपनी को प्रॉफिट हो, जो रॉ मटेरियल्स परचेज किए जा रहे हैं वो कितनी मात्रा में परचेज किए जाएं कि कंपनी के लिए एक ऑप्टिमम प्राइस आ जाए उनको मेंटेन करने में। अब आगे जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस करेंगे ईओक्यू के, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात से, इस प्रोसीजर से डील करता है कि किसी भी कंपनी या बिजनेस को या फैक्ट्री को इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी चाहिए कि उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ऑप्टिमाइज हो जाए। अगर आप रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज कर रहे हैं तो आपको उसको स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए, तो उस केस में आपकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। और अगर आप रॉ मटेरियल्स कम परचेज कर रहे हैं तो आपको उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी बिकॉज यू आर मेकिंग फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स। सो दिस इज डेल्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. In that case, I would like to explain one example also, which is also called JIT, just in time. This method was used by Toyota first. इस केस में यहाँ पे टोयोटा कंपनी ने अपने सप्लायर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए कि उन्होंने इन्वेंट्री को मेंटेन करना, उसको स्टोर करने की पॉलिसी बिल्कुल खत्म कर दी। अब वो रोज एक नया ऑर्डर अपने सप्लायर्स को देते और वो सप्लायर्स उनको जो रॉ मटेरियल है रोज का रोज सप्लाई करते हैं। इस केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई बट कैरिंग कॉस्ट जीरो हो गई बिकॉज दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी इन्वेंट्री इन देयर प्रेमिसेस, hence optimizing the production process and reducing the risk of obsolete raw material. अगर आप रॉ मटेरियल अपने पास अपने स्टोर हाउस में, वेयर हाउसेस में स्टोर करके नहीं रख रहे हैं तो वो ऑब्सोलीट नहीं होंगे, उनके खराब होने का डर खत्म हो जाएगा, उनके डिस्ट्रॉय होने का डर खत्म हो जाएगा, उनके डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन नहीं आएगी. So by that way you can maintain proper inventory of your final goods only, which will reduce the level of cost very much for the organization. So we can also say that microeconomics is a bottoms up approach. ये एक सबसे लोएस्ट लेवल से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ती है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. So microeconomics starts from the zero step, you can say. It starts from the very starting step, from where the first time the organization or a business house takes its or acquires its raw material for production. So it is a bottoms up approach. Okay. And macroeconomics, in the case of macroeconomics, it is a top down approach and looks at the economy as whole, trying to determine its course and nature. अब हमने अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है, एनालाइज करती है उन डिसीजंस को जो कि कंट्रीज और गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं. तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टॉप डाउन अप्रोच. एक कंट्री एज अ होल, एक गवर्नमेंट एज अ होल कुछ डिसीजंस लेती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है और उसे फिर पूरी इकोनॉमी में अप्लाई करने की कोशिश करती है.
ये जानने की कोशिश करती है कि हम इन पॉलिसीज को, इन स्कीम्स को किस तरीके से लास्ट पॉइंट तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट गवर्नमेंट एंड ट्राइज टू रीच टू द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स को, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, वेयर द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि हमें इस साल मनरेगा और उसके वर्कर्स के लिए इतने कैपिटल, इतने रिसोर्सेज अलग करके रखने हैं, और उनको एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वी हैव टू पे सर्टेन वेजेस एंड money. So here the policy is made at the governmental level, at the highest level, and from that central government level it is implemented to state levels. फिर स्टेट लेवल से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो स्कीम जाती है, और फिर जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहुंचती है, रूरल एरियाज में पहुंचती है, तो वो अपने फाइनल कंज्यूमर या फाइनल इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाती है। तो वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टॉप डाउन अप्रोच। देन investors can use microeconomics in their investment decisions, while macroeconomics in an analytical tool mainly used to craft economic and physical policies. So microeconomics helps individual investors to form their investment decisions. माइक्रो की जानकारी, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की जानकारी एक इन्वेस्टर को हेल्प करती है कि वो किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, यानी कि वो ये पता कर सके कि उसे कौन सी स्कीम में, कौन से बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ओके, how much he should purchase of a commodity so that it will give him highest amount of profit without becoming obsolete. Okay, अगर हम एक बिजनेस लेवल पे बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स और डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स को जो बिजनेसमैन अच्छे से स्टडी करता है, उन पर रिसर्च करता है, तो वो अपनी कंपनी में उतना ही रॉ मटेरियल मेंटेन करता है जितना उसको आने वाले समय में ज़रूरत है। वो एक्सेस में रॉ मटेरियल स्टोर नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने एक्सेस में रॉ मटेरियल स्टोर कर लिया है तो सबसे पहले तो आपकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। उसके अलावा अगर ट्रेंड चेंज हो गया, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, तो आपका एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो हमें डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेंटेन करने हैं, एंड वी हैव टू लुक एट द नियर फ्यूचर। While in case of macroeconomics, it is an analytical tool mainly used to craft economic and physical policies. मैक्रो इकोनॉमिक टूल एक पूरी कंट्री को, उसमें रहने वाली पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है जिसे गवर्नमेंट हेल्प की जरूरत है, या जिसको नई स्कीम्स की जरूरत है टू इन्वेस्ट their money and to become with and to get a better standard of life. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, हम डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जैसे आपकी मनरेगा स्कीम हो गई विच इज फॉर द डेली वेजेस, आपकी मुद्रा स्कीम हो गई विच इज फॉर द बिजनेसमैन ऑफ मिडिल स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो मिडिल एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, या फिर अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स की बात करें विच इज अ स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच वांट टू एस्टैब्लिश देयर स्मॉल बिजनेसेस, वेरी स्मॉल बिजनेसेस यू कैन से। तो ये वो पॉलिसीज हैं जो कि हेल्प करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर उसमें रहने वाली पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, और ये बहुत जरूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक साथ काम करना, एक सिंक में काम करना भी बहुत जरूरी होता है। जब एक गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है कि किस तरीके से वो अपनी पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगी डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, तो जब वो स्कीम एक लास्ट पॉइंट तक, एक लास्ट इंडिविजुअल तक पहुंचती है जिसको बेनिफिट होना है, जो बेनिफिशियरी तक पहुंचती है, तो वो ये जरूरी है कि वो बेनिफिशियरी भी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझे और उस पैसे को सही तरीके से यूज करे।
so that the money runs in the economy and helps the country with good flow of money. Okay, so we will next move forward. Then the next topic is the scope of microeconomics. What is the scope of microeconomics? Why microeconomics is important? Why the study of microeconomics is important for any organization? So here we can see a diagram. Here we can see a picture which talks about resource allocation. Resource allocation has three parts. First is what to produce, second is how to produce, and third is for whom to produce. Resource allocations comes with three questions, three basic questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को अपने फाइनल कंज्यूमर के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किस तक ये सामान या ये प्रोडक्ट पहुंचाना है. तो resources are limited. We have always studied, we have one statement with us that resources are limited. All the resources in the world related to production are limited to some extent. Coal is limited, oil is limited, crude oil is limited, manpower is limited, and we have to use those resources to their highest efficiency. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो थ्री बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड. That is, what product should be selected for production process which is going to be useful for the consumers. And next question comes after that, how to produce it. कैसे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है रॉ मटेरियल को यूज करके कि मिनिमम वेस्टेज हो, मिनिमम स्पिलेज हो, और फुल एफिशिएंसी के साथ या मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वो प्रोडक्ट बनाया जा सके, so that the final product with quality product goes to the consumer. And then next is for whom to produce. आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, पर आपकी टारगेट ऑडियंस या आपके टारगेट कंज्यूमर्स कौन है, आपको उन तक पहुंचना है. You cannot make a good product and not making your target consumers aware about it and thinking that your product will sell. तो इन तीन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए कुछ रिलेटिव पॉइंट्स हम फिर से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो there are two words, customer and consumer. What is customer and what is consumer? First of all, what is customer? Customer is a person which buys the product, but he may or may not consume the product. Customer वो person है जो product को खरीदता तो है पर उसे consume कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो customer है. And consumer is that person who actually consumes the product, consumes the final product. तो यहाँ पे हम example देख सकते हैं that if we are talking about a baby food, for example Cerelac or Farex, so a 6-month-old or a 1-year-old child cannot come to a shop or cannot go to a shop to buy that product, that baby food. That food is purchased by his or her parents. तो जब parent ने baby food खरीदा अपने children के लिए, तो वो customer है. He has purchased the product, but that food is consumed by the baby or the children of the house. तो वो उसका final consumer है. या फिर for example we have another parent who is looking for good books for his child. That person goes to a bookshop, purchases books, and then get it to his child for studies. तो यहाँ पे कस्टमर पेरेंट है जिसने किताब खरीदी है, बट उसका फाइनल कंज्यूमर एक स्टूडेंट है, और वो बुक उस स्टूडेंट के लिए, उस चिल्ड्रन के लिए तभी यूजफुल है जब उसके सिलेबस के सभी पोर्शंस को वो प्रॉपरली कवर अप कर रही है.
If it doesn't contains, or if it doesn't covers certain topics of the syllabus, that book is not very useful to the student. So in this situation, the company has to decide that what they need to produce. If they're producing baby food, it has to be delicious so that a baby should eat it. He should not discard it. And how it should be produced, how the food should be produced. It should be produced in a very well maintained environment where all the sanitary conditions are maintained, all the quality controls are maintained, and the nutritional content of that baby food is also maintained. And then after that, when that baby food is produced and it's different lots are produced, it is sent, it is given, the parents are made aware of it. पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि ये बेबी फूड मार्केट में अवेलेबल है, ये हम अपने बच्चे को फीड कर सकते हैं. So the first point was customer, the person who is buying the product but may or may not be consuming it. And second point is consumer. Consumer is the final individual which actually consumes the product. Okay. Then there are there are some other terms also. First is want. What is want? A consumer wants a product. Okay. The next term is need. When consumer needs a product, it is imperative for him to get that product in order to survive. जो नीड होती है वो वांट से ऊपर होती है. Want is a desire of having a product, and that want is converted into a final demand when the consumer or customer has enough money for it. Okay, so these wants and needs converts into demand, final demand for a product when the consumer has money for them to pay for them. Okay, so these are the some terms which you need to remember. They might come as a 1 marks question. So the scope of economics talks about 3 very basic questions: what to produce, क्या produce करना है, जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट है कंज्यूमर्स के लिए, उनके काम आ सकता है. फिर उस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट कैसे देना है, अपने वेस्टेज को, स्पिलेज को कैसे कम से कम रखना है. और थर्ड क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. जो भी फाइनल टारगेट है या जो भी फाइनल कंज्यूमर है, उसको हमें कैसे अवेयर बनाना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और उन्हें खरीदना चाहिए, क्योंकि ये एक काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है और इसकी फुल यूटिलाइजेशन एक कंज्यूमर को मिलेगी. Okay. The next, some other scopes of microeconomics are commodity pricing, factor pricing theory, and theory of economic welfare. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला स्कोप है आपका कमोडिटी प्राइसिंग, इसमें ये डिसाइड होता है कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट जिस भी इंडस्ट्री में बन रहा है तो उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप्स इन मार्केट. एक नॉर्मल बाथिंग सोप जिसके पैकेजिंग पे टॉयलेट सोप लिखा रहता है, वो कई सारी कंपनीज बनाती है. फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक सोप्स आते हैं जिनके ऊपर जिनका ग्लिसरीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर बाथिंग बार लिखा रहता है, उनकी प्राइसिंग अलग तरीके से होती है. देन देयर कम्स द शावर जेल्स which are not in form of blocks but in liquid form and people use it for bathing. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लक्स का. लक्स में नॉर्मल सोप भी आता है जिसे टॉयलेट सोप कहा जाता है और उसकी कॉस्ट एक 100 ग्राम बार की कॉस्ट अराउंड 22 रुपीज होती है. वी कैन अज्यूम इट्स 20 रुपीज. और जब हम उसके ग्लिसरीन बार्स पे जाते हैं, थोड़े हाई एंड बार्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक 100 ग्राम के सोप की कीमत आपकी अराउंड 40 to 50 रुपीज होती है. Even in case of, if you talk about another example of Dove, which is very famous bathing bar, 100 gram of soap costs around 60 rupees. And then another high-end consumers के लिए soaps नहीं बनते हैं, bathing gels बनते हैं, shower gels बनते हैं, जहाँ पे 100 ml बॉटल की कीमत around 90 to 95 रुपीज होती है. अब ये कंज्यूमर के इकोनॉमी, इनकम पे, उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है.
तो इस केस में यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की कमोडिटी प्राइसिंग लगती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं और उस कमोडिटी की प्राइसिंग थ्रू आउट द इंडस्ट्री कैसे होगी। टॉयलेट सोप्स आपके लाइफ बॉय भी बनाता है, लक्स भी बनाता है, आईटीसी के भी आते हैं, और फिर आपके जो ग्लिसरीन सोप्स हैं वो आपके निविया के भी आते हैं, डव के आते हैं, लक्स में आते हैं, मेडिमिक्स में आते हैं। And then if we talk about shower gels, then they are available in the brands of Nivea and Vival and ITC Superiors and Johnson baby powder. All these comes supplies shower gels also. So here there's a commodity throughout the industry which is produced by different firms in our industry. एक इंडस्ट्री के अंदर कई सारी फर्म्स हैं जो एक ही प्रोडक्ट, एक ही जैसे प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उसकी प्राइसिंग थ्रू आउट सेम तरीके से कैसे करनी है, ये कमोडिटी प्राइसिंग में डिसाइड होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। अब किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हुए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स होते हैं, सप्लाई फैक्टर्स होते हैं। उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से फाइनल गुड की प्राइसिंग की जाए कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर अप हो जाए और फिर उसको कुछ प्रॉफिट भी हो, और प्रॉफिट इतना हो कि वो अपने सभी एम्प्लॉयज को, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉपर सैलरी दे सके और अपने स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड कर सके। तो ये सारे फैक्टर्स आपके फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी के अंडर आते हैं। एंड द लास्ट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल लेवल की बात करती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जो भी कैश फ्लो प्रोसेस हो रहा है, वो इकोनॉमी में रहने वाले लास्ट इंडिविजुअल तक को वेलफेयर पहुंचाए। देयर शुड बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। Every person should get some money or should get some financial services in order to survive properly in this world, in order to have some modest standard of livings. Okay. So theory of economic welfare mainly concerned about how to give, how to spend, or how to reach to the last individual in the economy. Okay. Then what is the significance of microeconomics in business decision making? This is also a very important topic. इस पे आपका एक लॉन्ग आंसर आ सकता है और इसमें अब हम जाके लगभग करीब 10-11 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार समटाइम्स आई कैन स्पेकुलेट कि अराउंड 60% तक चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो आपको इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। The first significance of microeconomics study in business decision making is the optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources ये कहता है कि जो आपके जितने भी resources आप business में लगाने वाले हैं उनका maximum utilization हो, उनमें wastage कतई ना हो, तो इसे हम optimum utilization of resources कहते हैं। The next point is demand analysis. किसी भी बिजनेस में आने से पहले, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कोई भी फर्म पहले ये जानने की कोशिश करती है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस कर दिया जाए। उस केस में ये होगा कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आइडियल पड़ा रहेगा, जो एक्स्ट्रा फाइनल प्रोडक्ट है, और वो खराब होने के चांसेस हैं। अगर आपने डिमांड से कम प्रोडक्शन किया तो जो मार्केट आप या जो डिमांड आप नहीं कवर कर पाएंगे वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ लॉस जाएगी। इट विल बी ट्रीटेड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस। द नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस। in microeconomics it talks about the different cost which are occurred in a production process. एक प्रोडक्शन प्रोसेस में एक रॉ मटेरियल के पॉइंट से लेके फाइनल गुड के पॉइंट तक क्या क्या कॉस्ट, कौन कौन से स्टेप पे कितनी कॉस्ट लगती है, ये डिसाइड करता है, इसकी एनालिसिस होती है। और अगर वो कॉस्ट कहीं पे रिड्यूस की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, तो उसको करने की पूरी कोशिश की जाती है। बिकॉज वी आर स्टेटिंग वन स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, हम बार बार एक स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में पढ़ा जाता है।
कॉस्ट एनालिसिस इसको डिफाइन करती है। द नेक्स्ट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ्री मार्केट इकोनॉमी का भी एक हम आइडियल वर्जन यूज करते हैं, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि इंडस्ट्री के अंदर एंट्री और एग्जिट के कोई रूल्स नहीं है और सारी बाकी की सारी कंडीशंस आइडियल हैं, तो कैसे फंक्शन करेगी इंडस्ट्री, क्या प्राइसिंग होगी, प्रोड्यूसर्स तक कितना सामान पहुंचेगा, किस क्वालिटी का सामान पहुंचेगा, दिस ऑल इज डिसाइडेड थ्रू फ्री मार्केट इकोनॉमी। द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस पॉइंट में माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से, माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस मोस्ट एफिशिएंट हो। यानी कि एक डिसीजन ट्री यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल वी यूज डिसीजन ट्रीज, वी यूज पर्ट एनालिसिस टू इंश्योर that what process we are using or what process we are applying for making of a final product, it is the most efficient process. जो भी प्रोसेस या जो भी मशीनरी एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर इस्टेब्लिश की गई है, वो इस तरीके से लगाई गई है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से हो रहा है, बिना किसी वेस्टेज के। ना तो उसमें रॉ मटेरियल की वेस्टेज हो रही है, ना उसमें लैंड की वेस्टेज हो रही है, ना ही उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की किसी तरह की कोई वेस्टेज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस प्राइसिंग पॉलिसीज में भी है। ये डिसाइड करती है कि प्राइसिंग, फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से की जाए। जब आप फोर्थ यूनिट में प्राइसिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स है कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, देन इंक्रीमेंटल प्राइसिंग एंड देन देयर इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे प्राइसिंग पॉलिसीज में, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है, जिसकी डिमांड है मार्केट में, कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट चाहते हैं, तो उसकी प्राइसिंग किस तरीके से की जाए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इस केस में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी लो रखता है और उसकी अवेयरनेस इतनी हाई रखता है अपने कंज्यूमर्स में कि एवरीवन गेट्स टू नो अबाउट इट, और प्राइस लो होने की वजह से हर कोई उसे खरीद पाता है। और फिर जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंज्यूमर उसका यूज करने लगता है और उस प्रोडक्ट को यूजफुल मान के उसकी कंटिन्यू रखता है उसका यूज, तो इससे कंपनी का फायदा बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, और इसका एग्जाम्पल जो बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल हो सकता है, दैट कैन बी ऑफ जियो सिम कार्ड्स। जब जियो के 4G सिम्स मार्केट में आए, इन्होंने अपने सिम्स और इसके साथ मिलने वाले इंटरनेट पैक्स की प्राइस इतना लो रखा कि एवरी लास्ट पर्सन वाज एबल टू अफोर्ड इट। इसकी वजह से हुआ कि जियो का पेनिट्रेशन हर क्लास, हर इंडिविजुअल क्लास में हो पाया, फ्रॉम द लोएस्ट earning member of the society to the highest earning member of the society, everyone had a Jio SIM. और जियो के इंटरनेट पैक्स की वजह से इतनी ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया कि बाकी ब्रांड्स को भी अपने इंटरनेट पैक के प्राइसेस घटाने पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर्स, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द कमोडिटी, जियो कंपनी ने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी इस तरीके से रखी कि वो मैक्सिमम कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। और आज की डेट में अगर आप ध्यान देंगे तो you will see that every person have a Jio SIM right now with the invention of double or you can say dual SIM phones. Everyone carries two SIMs, and of which one SIM is of mostly of Jio service. Okay. The next point of significance is determination of relative prices of products and factors of production. तो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ये भी हेल्प करती हैं कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक इंडस्ट्री में कई सारी फर्म्स होती हैं, वो फर्म्स एक प्रोडक्ट बनाती हैं और उन सभी प्रोडक्ट्स के बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो उन सभी प्रोडक्ट के रिलेटिव प्राइसेस किस तरीके से हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से करते हैं। The next is basis of managerial economics. Microeconomics helps managers all over the world to make
managerial decisions about cost, about human resources, about production process, and about sales and advertisement process also. The next is basis of welfare economics. अभी जब हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी पढ़ी थी, तो वही चीज का बेसिस यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स की है. माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपनीज को इसमें भी हेल्प करता है कि किस तरीके से वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करें, अपने फाइनल गुड को बनाए, कि वो वहाँ जिस भी जगह पे प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जिस भी जगह पे फैक्ट्री स्टैब्लिश है, वहाँ की कम्युनिटी को फायदा पहुंचाए. Microeconomics talks about how to produce employment for every person, every able person in the country, how to provide services for every person in the country. For example, our government is trying to take the financial services to the last person in the country. अभी 3-4 साल पहले तक ये सिचुएशन थी कि बैंक अकाउंट्स हर किसी के पास नहीं होते थे. But after the introduction of Jan Dhan Yojana, now every person is getting their bank accounts, और जहाँ पे उनका जो वेलफेयर मनी है वो डायरेक्ट आता है. जनधन योजना से पहले, जनधन योजना आपकी 2014 में यानी कि 2014 में लॉन्च हुई थी. उससे पहले अगर हम स्टेटिस्टिक्स की माने तो सिर्फ 40% पॉपुलेशन, उसमें भी मैक्सिमम आपकी अर्बन पॉपुलेशन बैंकिंग सर्विसेज यूज करती थी. रूरल पॉपुलेशन में बहुत कम लोग बैंकिंग सर्विसेज यूज करते थे और उसका लाभ नहीं ले पाते थे, उससे कोई बेनिफिट नहीं ले पाते थे. बट जनधन योजना के आने के बाद नाउ द extent of banking services has gone close to 80%. अब 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स है और वो बैंक की डिफरेंट स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं. The next is formulation of public economic policies. तो अभी मैंने एग्जांपल दिया जनधन योजना का, जिसमें हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोलने का इरादा किया गया. तो ये एक पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह है, जो कि ये ध्यान रख रही है, जो कि ये इस चीज को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही है, दैट एवरी इंडिविजुअल इन योर कंट्री शुड हैव अ बैंक अकाउंट सो दैट दे कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस इजीली एंड सिक्योरली. हर पर्सन के पास अगर बैंक अकाउंट होगा तो वो अपने फाइनेंसेस अच्छे से मेंटेन कर पाएगा और उन्हें सिक्योर कर पाएगा. अब जब सभी बेनिफिशियरीज के पास अगर बैंक अकाउंट है तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जो कि लोगों तक पहुंचानी है तो डायरेक्ट अब उनके पास पैसा पहुंचेगा. और बीच में जो मिडिल मैन अक्सर पहले रहा करते थे, जहाँ पे थोड़ा लॉस ऑफ मनी हो जाता था, लीकेज ऑफ फाइनेंसेस हो जाता था, वो अब नहीं होंगे. उनको कम करने की पूरी कोशिश की गई है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड. सो microeconomics also helps in foreign trade. It also helps a country to increase export and import within the country and to increase the current account of a country. Every country when talks about foreign trade, तो वहाँ पे एक concept लगता है balance of payment का. Balance of payment किसी कंट्री के करंट और कैपिटल अकाउंट डीलिंग्स को डिनोट करता है, जो कि फॉरेन ट्रेड के थ्रू होती है. तो करंट अकाउंट, वो फॉरेन ट्रेड में करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट होता है, वो डेली बेसिस पे एक कंट्री कितना फॉरेन ट्रेड कर रही है, कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही है, उसको डिनोट करता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम इस फॉरेन ट्रेड को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं. सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. This lecture was created with the help of following books. First is Business Economics by H.L. Ahuja of S. Chan Publication, and the next is Essentials of Business Economics, D.N. Dwivedi. And here are some websites which has been taken help to create this lecture. So in today's lecture, we studied what is economics, and it is divided into micro and macroeconomics. And since this is the subject of microeconomics, we are going to focus on this. Then what is the difference between micro and macroeconomics? We studied that. Then what is the scope of microeconomics? How it is beneficiary for a economy, and how it is beneficial on individual level.
Then what is the importance of microeconomics while taking business decisions? Business को कैसे facilitate करती है, तो इसके भी हमने around 11 points पढ़े. So first lecture के लिए हम इतना ही content cover करेंगे. Thank you so much students for listening very patiently. These are the references for this lecture. You can go through these websites and look for the articles if you want to study more. So this is all for today's lecture. Thank you for listening very patiently. And if you have any further questions, you can ask me. My email ID is available on the college website. You can ask me questions there and I will answer your question as soon as possible. And also you can ask questions to me in online classes and if any physical class and when physical classes happen. So this is Ritu Singh ending the first lecture of microeconomics here. Thank you, students.